Assalamu alaikum to all my students. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. How are you all? I hope that you are doing well and spending a quality time with your family at home. Today, here I am to explain you a revision of topic and its name is active and passive voice. But before starting our video, it is very important to all of you that please taking care of your health, because in these days it is very important to stay healthy, stay active, stay safe, and most importantly stay at home. As you all know that we are starting our online session again, so it's necessary to continue the flow of studies. So I welcome to you all after the celebrated Eid ul-Fitr. As you all know that due to crucial situation of COVID-19, we are not taking our physical classes. So students, these online classes are basically for you all. So please ensure that to avail the facility of this video and try your best. And it's a learning based video to improve your knowledge skill. So please watch this video and learn something. Now today we are going to start our video. The topic name is active and passive voice. The video is for class 5 students. The topic name is active and passive voice. It's a little bit difficult topic for students, but today I am going to tell you about the rules of active and passive voice, and I hope that the difficulties will be resolved about this topic. So the topic name is voice, active and passive. Let's start. Okay, now we have a definition of active and passive voice. Now read this along with me. In grammar, the voice of a verb describes its relationship with the subject, object, or any other element in a sentence. In grammar, the voice of a verb describes its relationship with the subject, object, or any other element in a sentence. The verb can be in the active voice or in the passive voice. ग्रामर में हमारे पास जो वर्ब होते हैं वॉइस के, वो डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप को, किसी भी वर्ब के साथ सब्जेक्ट के रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट का या किसी भी अदर एलिमेंट का सेंटेंस में रिलेशनशिप वॉइस के साथ क्या है वो हमें शो करता है वर्ब. वर्ब जो है वो हमारे पास किसी भी तरह का हो सकता है, आइदर इट इज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. नाउ वी हैव सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ओके, द फर्स्ट वन इज रिकी क्लीन्स द गार्डन. द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. रिकी क्लीन्स द गार्डन. Okay, on the other hand, we have this sentence on a passive voice. The garden is clean by Ricky. The garden is clean by Ricky. In both voices, the same messages are given. आपने नोट किया होगा, अगर हम इन दोनों वॉइस को कंपेयर करें तो दोनों के जो मैसेजेस हैं वो सेम हैं. आइदर जो है वो चेंजेस कहाँ हैं, इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में. Ricky cleans the garden. The garden is clean by Ricky. The second one is he removed the weeds. The weeds were removed by him.
He is watering the plants. The plants are being watered by him. Now move to the next slide. When the subject is the doer of the action verb, the verb is in the active voice. Active voice में सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ठीक है. When the subject is the doer of the action verb, the verb is the action voice. एक्टिव वॉइस में हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है, मतलब एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है. When the subject is the receiver of the action verb, the verb is said to be in the passive voice. लेकिन पैसिव वॉइस में जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को रिसीव कर रहा है तो वो हमारे पास पैसिव वॉइस होता है. एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जबकि पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है और एक्टिव में हम सब्जेक्ट जो होता है वो खुद काम कर रहा होता है, ठीक है. सब एक्टिव में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है, एज अ सब्जेक्ट खुद काम वो अपना परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि पैसिव में जो है वो हम सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं. एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है या सब्जेक्ट खुद काम करने वाला होता है, जबकि पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है. When the subject is the doer of the action verb, the verb is in the active voice. When the subject is the receiver of the action verb, the verb is said to be in the passive voice. Now move to the next slide. Active voice का हमारे पास रूल्स हैं या फॉर्मूला है. सब्जेक्ट डूइंग द एक्शन, जो सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, डूइंग द एक्शन प्लस वर्ब होता है हमारे पास, प्लस ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है. एक्टिव वॉइस में हम कैसे चेंजेस करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, काम करने वाला होता है, देन वी ऐड अ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव कर रहा है. नाउ वी हैव अ पैसिव वॉइस. अब इसमें सब्जेक्ट जो हो रहा है वो खुद काम करने वाला होता है, पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, और उसके बाद हम ऐड करते हैं बी, फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देन वी ऐड बाय, देन ऑब्जेक्ट डूइंग द एक्शन. एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है. एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का वॉइस बन जाता है. इस रूल को, इस फॉर्मूले को याद रखना है. सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट डूइंग द एक्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट डूइंग द एक्शन. इसकी एग्जाम्पल है राहुल इज़ टॉट बाय आरुषि. ये पैसिव वॉइस को एज अ सेंटेंस आपको शो गया गया है. इन पैसिव फॉर्म अ ट्रांजिटिव वर्ब इज मेड अप ऑफ द वर्ब बी विथ अ पास्ट पार्टिसिपल. पैसिव वॉइस में हम ट्रांजिटिव वर्ब को ऐड करेंगे एज अ बी अपने पास्ट पार्टिसिपल के साथ. इन पैसिव फॉर्म अ ट्रांजिटिव वर्ब is made up of the verb be with a past participle. पैसिव फॉर्म जब हम सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम बी ऐड करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल की
फॉर्म भी ऐड करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पैसिव वॉइस का एक और रूल है, यूजुअली द प्रीपोजिशन बाय इंट्रोड्यूस द पैसिव ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। पैसिव वॉइस में हमारे पास दो चीज़ें ऐड हो रही हैं। सबसे पहले तो हमने बी ऐड किया था एज अ वर्ड, देन वी हैव अ ऐड बाय एज अ प्रीपोजिशन, जिसको हम पैसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं अपने सेंटेंस में। ये हमारे पास पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने में यूज़ होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिमेंबर दिस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन वर्ब becomes the subject of a passive verb। एक्टिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ एक्टिव वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ पैसिव वर्ब। एक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। इसकी एक एग्जाम्पल भी हमारे पास, A doctor prescribes medicine। A doctor prescribes medicine। इसमें prescribes जो है वो एक एक्टिव वर्ब है और medicine जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। A doctor prescribes medicine। prescribes जो है वो शो कर रहा है एक्शन वर्ब को, एक्टिव वर्ब को, जबकि medicine जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, The object of a active verb becomes the subject of a passive verb। A doctor prescribes medicine। prescribes जो है वो एक्टिव वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि मेडिसिन जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे पास है एक्टिव वॉइस, जबकि पैसिव वॉइस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो मेडिसिन जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। Medicines are prescribed by a doctor। मेडिसिन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है आर प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। प्रिस्क्राइब्स जो हमारे पास एक्टिव वॉइस में एक्टिव वर्ब था वो हमारे पास पैसिव वॉइस में पैसिव वर्ब बन जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन ऑफ अ एक्टिव वॉइस। अ सेंटेंस इन विच the sentence of a verb is the agent or doer of the action denoted by the verb is said to be the active voice। The subject is active, that is it acts or does something। Now we have an example, active is equals to energetic or working। The subject is active, that is it acts or does something। But sometimes in some sentence the subject is not the agent, that is it did not do anything। Something was done to the subject, and sometimes the subject is not the agent। ठीक है, एक्टिव जो होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करने वाला खुद होता है, जबकि पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का वॉइस बन जाता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि जो है एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन, ये एक्टिव वॉइस था, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। नाउ मैं आपको डिफरेंस बिटवीन बताऊंगी कुछ एक्टिव और पैसिव वॉइस के। द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वर्ब इज द एजेंट और द डूअर ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। द सब्जेक्ट ऑफ अ पैसिव वर्ब इज नॉट द एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है एक्टिव वॉइस में, जबकि पैसिव वॉइस में एजेंट जो होता है वो सब्जेक्ट का नहीं होता। इन अ सेंटेंस
द पैसिव वॉइस द एजेंट ऑफ अ एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो हमारे पास एजेंट होगा वो वर्ब को डिनोट करता है, जबकि सम सेंटेंस में हमारे पास प्रीपोजिशन के साथ जो है हम एक वर्ब ऐड करते हैं जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम प्रीपोजिशन भी ऐड करते हैं पैसिव वॉइस में। प्रीपोजिशन हमारे पास एज अ बाय की सूरत में यूज़ होता है और पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, जबकि सब्जेक्ट में हम जो है सिर्फ एक्टिव वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है, एक्टिव और पैसिव वॉइस का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव का, वो हमारे पैसिव वॉइस की चेंजिंग में जो है उसका सब्जेक्ट बन जाता है। इट शुड बी क्लियर नाउ दैट इन चेंजिंग द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वी हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस। The object of the active verb becomes the subject of a passive verb. It therefore follows that only active transitive verbs with objects can be changed into passive. So all sentences in the active voice cannot be changed into the passive. The subject of the active verb or the agent can be mentioned only with the help of a preposition. प्रीपोजिशन हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? बाय इज़ यूज विद अ पैसिव वर्ब एंड देन द एजेंट इज मैंशन। एक्टिव ट्रांजिटिव वर्ब में टू ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्टिव ट्रांजिटिव वर्ब आपके दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन चेंजिंग द वॉइस टू पैसिव एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब। The other object becomes the object of a passive verb and is then known as the retained object. एक्टिव वॉइस को जब हम चेंज करेंगे तो एक्टिव जो जिसका सब्जेक्ट होता है, जिसके हम जो खुद काम करने वाला होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। जबकि पैसिव में जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। एक्टिव और पैसिव हमारे पास दो तरह के भी हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम एक तो बाय ऐड करते हैं एज अ प्रीपोजिशन और पास्ट पार्टिसिपल की वर्ड की फॉर्म यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम किस में यूज़ करते हैं? अपने पैसिव वॉइस में। जबकि एक्टिव वॉइस में हम कोई चेंजेस नहीं है। एक्टिव वॉइस में हमारा सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो खुद काम करने वाला होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस हमारे पास खुद काम करने वाला होता है, जबकि पैसिव जो होता है हम उसमें अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव अ कॉपी वर्ड रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, the word is related to state which sentences are active and passive voice। आपको मैंने 5 सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है। अनसीन सेंटेंसेस है, आपको इनको देखना है और सेलेक्ट करके लिखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो आपका एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस आपका पैसिव है। बस ये बात याद रखनी है कि एक्टिव जो होता है वो सब्जेक्ट में खुद काम करने वाला होता है, ठीक है। और जबकि पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है। आपको ये बात रिमेंबर रखनी है और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है कि आइदर विच सेंटेंस आर एक्टिव और पैसिव। द फर्स्ट वन इज वी क्लीन आवर ओन रूम्स एंड मेड आवर ओन बेड्स। द सेकेंड वन इज रिफ्रेशमेंट्स विल बी सर्व एट 11 AM। द थर्ड वन इज द बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स ऑल डे long. The fourth one is you must not talk to anybody during an examination. The fifth one is results of the examination will be announced after 50 days.
Okay, I have given you the 5 sentences related to active and passive voice. First of all, you have to watch this video, then understand the rules of active and passive voice, then do this work in your copy. You have to do this work in your English B copy in a very neat and clean handwriting. ठीक है, बहुत साफ़ सुथरी काम करना है आपने ये अपनी इंग्लिश बी की कॉपी में. ठीक है, आपको मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड 5 सेंटेंसेस दिए हैं. आपको इनको कॉपी करके जस्ट लिखना है कि कौन सा सेंटेंस आपका एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव है. 5 सेंटेंसेस गिवन है, बहुत ईजी है. आई होप कि ये आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होंगे. इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क मी ऑन WhatsApp. Thank you and Allah Hafiz.